Assalamu alaikum my YouTube students. Here students, in our previous lecture we have discussed the definition of linear equation, solution of linear equation and the techniques of solving linear equation in one variable. And afterwards we have discussed exercise 7.1 question number 1. Today we are going to discuss equation involving radicals but reducible to linear equation. When the variable in an equation occurs under the radical, fine, like this is called radical equation. For example, variable is under the radical sign, so it means this type of equation is called the radical equation. Now if we are going to discuss the technique for solving the radical equation, first of all we are going to eliminate the radical sign. How we are going to eliminate radical sign? We have to take power equal to the index of the radical. So I have to eliminate this radical sign by taking this index is 2, where there is nothing, there is 2. So I have to take power 2 on the both sides of equation. So it will be cancelled, eliminated. We are having cube root. So I have to raise the power to the index of radical. What is the index of radical here? The index of radical is 3 over there. So I have to take power 3 over there on the both sides of the equation. So it will be cancelled. 3x is equal to 7 cube. Dear students, when keep that thing in your mind, when we are going to raise each side of the equation to the certain power. For example, here I have raised to power 2, here I have taken cube on both sides. Raising each side of the equation to the certain power, it may produce non-equivalent equation that has more solutions than the original equations. Means कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस भी इक्वेशन के ओरिजिनल सॉल्यूशन के साथ साथ कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस भी आएंगे. वो जो एडिशनल सॉल्यूशंस होंगे जो कि हमारे पास इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ठीक है, वो सॉल्यूशन जो एडिशनल सॉल्यूशंस आएंगे आपके पास ओरिजिनल सॉल्यूशन के साथ साथ, वो कहलाएंगे हमारे पास एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस. व्हेन वी आर working on the radical equations, then we must have to check that either the solutions satisfy the original equations or not. If they are satisfy the original equation, so it means these are the original solution, और जो satisfy नहीं करेंगे आपकी original equation को, these are called extraneous solution. Extraneous solutions are the additional solutions and they do not satisfy the equation. मुझे यहाँ even पार लेनी है ना, तभी तो ये कैंसिल होगा. तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि यहाँ मेरे पास एक्सट्रेनियस रूट्स आ जाएं. फाइन, इफ आई एम हैविंग दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, if I am having this type of equation, fine, so I have to raise power, odd power raise करनी है मुझे. I have to raise each side to the power 3, that is odd number. ठीक है, यही कैंसिल होगा हमारे पास. अब ऑड नंबर पे जब मैं ऑड पावर रेज करती हूँ तो मेरे पास हमेशा क्या आती है, इक्विवेलेंट इक्वेशन प्रोड्यूस होती है. ठीक है, यहाँ मेरे पास हमेशा इक्विवेलेंट इक्वेशन प्रोड्यूस होती है. जो सॉल्यूशंस आएंगे वो ओरिजिनल सॉल्यूशंस ही होंगे. और यहाँ मेरे पास जब मैं रेज करती हूँ इवन पावर को, तो यहाँ इक्विवेलेंट इक्वेशन, ऐसा भी हो सकता है कि इक्विवेलेंट इक्वेशन प्रोड्यूस ना हो और यहाँ मेरे पास आ सकते हैं एक्सट्रेनियस रूट्स, एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस, एक्सट्रेनियस रूट्स आ सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू आइसोलेट दिस. It will be -1. So I have to raise part 2. So this will be 4. 2 2s are 4 into 3x plus 1. It will be cancelled with this. Is equal to positive 1. 3x plus 1 is equal to 1 upon 4 and 3x is equal to 1 upon 4 minus 1. X is equal to LCM over there. It will be 1 minus 4 minus 3 by 4. So I have to isolate x. It will be divided. 3 3 से cancel.
मेरे पास x इज इक्वल टू आ रहा है -1/4। अब ओरिजिनल रूट्स आ भी सकते हैं या सोल्यूशन सेट इक्वेशन आ भी सकता है या उसके साथ एडिशनल सोल्यूशन भी आ सकते हैं, मींस एक्सट्रेनियस रूट्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो लेट अस चेक। We are going to put x is equal to -1/4 in this equation. We have, so after taking LCM it will be -3 plus 1 4 ये आ जाएगा 4, 1/4 plus 4 is equal to 3। जब इसको हम अंडर रूट अप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2, 2 से कैंसल, it becomes 1 plus 4 is equal to 3। ये आ रहा है 5 is equal to 3। 5 क्या 3 के इक्वल है? नहीं है, 5 is not equal to 3। तो इससे हमने देखा this is the extraneous solution। हम लिखेंगे solution set is equal to empty। ये भी याद रखें, ये आपके पास एक एक्सट्रेनियस सोल्यूशन था, ठीक है। अब ये याद रखिए, एक तो हमारे पास जब भी हम इनकी रेस करेंगे इवन पार्ट तो मेरे पास आ सकता है एक्सट्रेनियस सोल्यूशन, ठीक है। और जब हमारे पास एक्सट्रेनियस सोल्यूशन आ जाएगा, वेरीफाई नहीं करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम लिखेंगे सोल्यूशन इज एम्प्टी। अब हम ये देखें, जब इक्वेशन में हमारे पास कोई रेडिकल एक्सप्रेशन हो, the equation in which radical expression is equal to the negative number। जब भी मेरे पास किसी रेडिकल एक्सप्रेशन हो, रेडिकल एक्सप्रेशन में रेडिकल एक्सप्रेशन किसी नेगेटिव नंबर के इक्वल आ जाए, लाइक मेरे पास यहाँ रेडिकल एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ रहा है, यहीं से आप चेक कर सकते हैं, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। यहाँ आ जाएगा मेरे पास √3x + 1। आपको बताने का मकसद ये था -1/2। मेरे पास आ रहा है रेडिकल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू -1/2, नेगेटिव नंबर के इक्वल आ रहा है, तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। आपने यहीं डायरेक्ट आप एम्प्टी सेट लिख सकते हैं, ठीक है। व्हेन द इक्वेशन इन विच द रेडिकल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द नेगेटिव नंबर दैट हैव नो सोल्यूशन इन द रियल नंबर, ठीक है। आप डायरेक्ट इसके बाद आप ये लिख सकते थे। मैंने आपको पूरा प्रूफ करके बता दिया कि देखिए जी, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट वाकई नहीं करता। अगर ये इस तरह होता है, रेडिकल एक्सप्रेशन हमारे पास किसी नेगेटिव नंबर के इक्वल आ जाता है, तो डायरेक्ट हमारे पास सोल्यूशन सेट एम्प्टी सेट हो जाता है, ठीक। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 7th पार्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ एंड इट्स रिलेटेड क्वेश्चंस आर क्वेश्चन नंबर 2 ऑल पार्ट्स। 2t + 6 इज इक्वल टू 2t - 5। इधर जाके पॉजिटिव हो गया। अगर मैं यहाँ, तो मैं होल स्क्वायर नहीं ले सकती थी, होल स्क्वायर लेती तो वो a - b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगता, मेरे पास रेडिकल साइन कभी भी रिमूव ना होता इजीली। सो आई हैव टू रेज, बिकॉज इंडेक्स इज 2, तो मुझे पार क्या रेज करनी है 2। सो इट विल बी कैंसल्ड। 2t + 6 इज इक्वल टू 2t - 5। Here we are having 2t minus 2t is equal to -5 - 6। ये 0 आ गया और ये आ गया -11, which is not possible। So if it is not possible, so it means that solution set is equal to empty, ठीक है। जब भी आपके पास इवन पावर आएंगी एक्सट्रेनियस रूट की, दो बातें आपने याद रखनी है। एक तो जब आप रेस करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो इक्वेशन आपके पास फॉर्म हो वो इक्विवेलेंट इक्वेशन ना हो, सेम लाइक दिस, ठीक है। इक्विवेलेंट इक्वेशन नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और उससे जो आपके पास रूट्स प्रोड्यूस होंगे, जो सोल्यूशन सेट्स आए वो ओरिजिनल के साथ साथ कुछ एक्सट्रेनियस सोल्यूशंस भी आ जाएं, ठीक है। तो यू नीड टू चेक इट, फाइन। और दूसरी बात, अगर आपके पास रेडिकल आपके पास इक्वल होती है किसी नेगेटिव नंबर के, नेगेटिव एनी नंबर, तो उसका सोल्यूशन सेट भी आपके पास एम्प्टी सेट आता है, ठीक।